سمجھ کے جس سے میری روح خوش ہو جائے. اج بھی آسی کل بھی آسی. اس کا مطلب قوم کو میرے علامہ صاحب یاد ہے. الحمدللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ایک مرتبہ مسکرا کے پھر کہہ دو اج بھی آسی کل بھی آسی. نعرہ تکبیر. شان محمد مصطفیٰ. میری طرف دیکھیں. جو پیچھے دیکھ رہا وہ نہ دیکھیں. اب میری طرف دیکھیں. اب میں ایک نعرہ لگاؤں گا. صرف وہ بولے گا جو اندر اور باہر دونوں طرف سے سننی ہوگا. بلیک اینڈ وائٹ سننی نہیں. علامہ صاحب کی زبانی کہہ رہا ہوں. جو مکمل سننی ہوگا. میں نعرہ لگا رہا. ادھر دیکھیں. ادھر دیکھیں. ہاتھ لگا کے دونوں ہاتھ اٹھا کے وہ جواب دے گا جو پکا سننی ہوگا. شان صدیق اکبر بلا تاخیر اور بغیر کسی تمہید کے میں آپ کے سامنے دعوت سخن دینے جا رہا ہوں. عالم دنیا کی عظیم شخصیت. انشاءاللہ آج وہ بولیں گے تو پھول جھڑیں گے. جن کو آپ نے الحمدللہ جب بھی سنا تو صحابہ کے ترانے سناتے ہوئے سنا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سنیں گے ایمان تازہ ہوگا. اللہ تعالیٰ آج کے اس پروگرام کو ہم سب کے لیے بخشش کا ذریعہ بنائیں گے. تشریف لاتے ہیں آپ کے سامنے خطیب یورپ و ایشیا حضرت علامہ یحییٰ عباسی صاحب. میں آپ حضرات کو بتا رہا تھا کہ ہم نے ملتان لیول پہ جلندری صاحب کی قیادت میں تقریباً 7 سال ہو چکے ہیں ایک پروگرام شروع کیا ہے. ہم چوک ڈبل پھاٹک پہ پروگرام کراتے ہیں 22 جمادی الثانی کو خلیفہ بلا فصل کانفرنس. اور الحمدللہ یہ فرقہ واریت پر مبنی نہیں ہوتی. یہ ہمارے اکابرین کی قیادت میں ہوتی ہے. اس سال بھی بروز منگل کو یہ کانفرنس ہو رہی ہے. کب ہو رہی ہے؟ 24 دسمبر بروز منگل. اور آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ اس پروگرام میں بھی ہمارے یہی دولہا تشریف لا رہے ہیں. آپ جس طرح یہاں آئے ہیں تو ہمارے دولہے کے لیے چوک ڈبل پھاٹک بھی آئیں گے انشاءاللہ تعالی. کون کون آئے گا ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں. کہو جی انشاءاللہ. اکیلے آؤ گے یا 10 بندے ساتھ لاؤ گے؟ اچھا. چوک ڈبل پھاٹک جامع مسجد مکی مرکزی مسجد. اس مسجد کے امام اور خطیب قاری محمد عمران صاحب میرے ساتھ تشریف لائے ہوئے ہیں. ہم دونوں بھائی علامہ صاحب کی خدمت میں ایک محبت بھری ایک یوں سمجھو ایک دعوت بھی دینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کا پورا بیان سننے کے لیے بھی حاضر ہوئے ہیں. ایک درخواست کروں گا کہ بیان کے دوران کوئی بھائی اٹھ کر کے ادھر ادھر متوجہ نہ ہو. بیان کا پوری ترتیب خراب ہوتی ہے. آپ حضرات توجہ کے ساتھ بیٹھیں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. اتنا زیادہ بھی نہیں بڑھانا کہ شور ہو کچھ سمجھ بھی نہ. درمیانی میڈیم ان کو بھی میڈیم ہر چیز بھی. کیا جگہ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ صاحب التاج والمعراج سید الانس والجنات محبوب رب الارض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الانجيل والتوراة
أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن وفي مقام آخر والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون آمنت بالله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أنا وأبو بكر وعمر خلقنا من تربة واحدة وفيها نطفة وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے. ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے. توڑ کر سلسلہ سیاست کے فصوں کو ہم نے اصحاب پیغمبر سے محبت کی ہے. اصحاب پاک مصطفیٰ کو رب نے کیا جگر دیا. اصحاب پاک مصطفیٰ کو رب نے کیا جگر دیا. بہرحال بے دھڑک سرد مال و زر دیا. کسی نے سلسلہ دیا, کسی نے نصف گھر دیا. پر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا, خدا کے نام کے سوا جو کچھ تلا کے دھر دیا. جس کو صدیق ذات خدا نے کہا اور صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا, جس کو صدیق سب اولیاء نے کہا اور صدیق ہی مرتضیٰ نے کہا. ہم بھی کہتے ہیں صدیق صدیق ہے, جو نہ صدیق مانے وہ صدیق ہے. میرے تائی واجب الاحترام قابل صد اعزاز ذی قدر علماء کرام, شعراء کرام, قراء حضرات, طلباء کرام, عمائدین علاقہ, معززین شہر, حاضرین و سامعین,
बुजुर्गान दीन और नौजवान दोस्तों, आज 21 दिसंबर सन 2024 को आप हजरात की इस जामे मस्जिद रहमानिया गुलशन शुजात मुजफ्फराबाद मुल्तान में ब्रदर अजीज हमारे इंतहाई प्यारे दोस्त भाई शागिर्द अजीज मौलाना मोहम्मद नदीम साहब की वसाकत से बरादर मुकर्रम जनाब मलिक नज़र मोहम्मद साहब के वालिदैन के ईसाल सवाब के इस प्रोग्राम में हाज़री का इत्तेफाक नसीब हुआ है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरा और आपका ये मिल बैठना अपनी दरबार में कबूल व मंजूर फरमाए। जिंदाबाद। मैं आज जोर से लेकर अभी तक मुल्तान के हॉस्पिटल में था, अपने चेकअप और टेस्ट करा रहा था। मुख्तलिफ बीमारियां आपको पता है मौलवियों को होती है, तो मुझसे ज़्यादा तो आप बीमार लग रहे हैं। मेरा बच्चों को बिठा दो। एक मिजाज है कि मैं जिंदा दिल आदमी हूँ और जिंदा दिल मजमा चाहता हूँ। आप आजकल आदी हो चुके हैं उन खतीबों के जो कहते हैं पैसा फेंक तमाशा देख। मैं वो नहीं हूँ, उनमें से भी नहीं हूँ। मैंने अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए देवबंद के स्टेज का मेयार वकार बरकरार रखा। इसलिए मैं आपकी जेबें काटने नहीं आया, वापसी के पेट्रोल के पैसे भी छीनने नहीं आया। मैं अपने दिल की बातें तुम्हारे दिल के कंप्यूटर में सेव करने आया। और मैं कहा करता हूँ कि मैंने 85 से 1985 से खिताबत के समंदर में कदम रखा था। आज 2024 अपने इख्तिताम को टच कर रहा है। यूँ 40 बरस गुजर गए अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस समंदर में तैरते हुए। मगर ये बताने का मकसद ये नहीं है कि मैं कोई बड़ा बुजुर्ग खतीब हूँ, पुराना खतीब हूँ, मेरे हाथ चूमो। नेवर, नथिंग, नॉट। बताने का मकसद ये है कि मेरे इस 40 साला दौरे खिताबत में अल्लाह ने मुझे पूरी दुनिया घुमाई। अरब, अजम, यूरोप, अफ्रीका, कनाडा, सारी दुनिया में 60-70 मुल्कों में गया हूँ और हर साल जाता हूँ। दर्जनों दफ़ा गया हूँ। अभी भी कुछ दिन पहले मैं लंदन का दौरा करके वापस लौटा हूँ। आप मेरी कोई तकरीर उठाएं 85 से लेकर आज के दिन तक, मेरी तकरीर में ना तो कोई लतीफ़े होते हैं, ना कोई चुटकुले होते हैं, ना कोई हंसाने, रुलाने, घुमाने और वक्त ज़ाय कराने की बातें होती हैं। मैं एक अलग धुन का खतीब हूँ। अपने मौजूए सुखन के समंदर की लहरों पे तैरता हूँ, फिर उस समंदर में होते खाता हूँ, बड़ी गहराई तक जाता हूँ, हीरे और मोती उठाता हूँ, तुम्हारे दामन में सजाता हूँ, देवबंद का अकीदा बताता हूँ। पर करता उस वक्त जब सामने बैठे हुए चेहरों पे भी कुछ जज्बा अच्छा लगता। मजा तो तब है ना कि दोनों तरफ आप बराबर, जैसे आप चाहते हैं
کہ मुकर्रिर माइक पर आए तो बस हमें मजा आ जाए। दिन में हमें दर्जनों फोन आ जाते हैं, हजरत आप आ रहे हैं आज, फला मौजू, फला बात, तो मजा आ जाना चाहिए। तो मुकर्रिर भी चाहता है कि मैं सफर करके आया हूँ, मुझे ऐसा जिंदा मजमा मिले कि मेरी भी थकावट उतर जाए। अब एक दफा मौलवी समेत गूंज के कह दो सुभान। मेरे दोस्तों, उन्वान जो मुझे दिया गया वो है कि आज मैं रामानिया मस्जिद शुजात गुलशन शुजात मुजफ्फराबाद मुल्तान वालों को यार गारे पैगंबर रफ़ीक हिजरत, रफ़ीक कौसर, रफ़ीक जन्नत, तैयबा, ताहिरा, जाहिदा, आबदा, अतीका, अफीफा, उम्मुल मोमिनीन जनाब सैयदा आयशा सिद्दीक़ा के बाप, खलीफा बिला फसल, अमीरुल मोमिनीन, इमामुल मुत्तकीन, कातिलुल मुर्तद्दीन, जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर के सर के ताज के हीरों की चमक। और मैं गुफ्तगू की इब्तदा इस जुमले से करने चला हूँ, आपकी पूरी तवज्जो के साथ। अगर आपने इधर उधर देखना शुरू किया, मैं समझ जाऊंगा कि मैं वक्त ज़ाय कर रहा हूँ और जल्दी से दुआ के लिए हाथ खड़े कर दूंगा। मैं तब तक बोलता रहूँगा जब तक आप सुनते रहें। जब मैं देखूंगा तो जो हट रही है तो मैं आपसे ज़्यादा थका हुआ भी हूँ, नखरेबाज भी हूँ, नफीस भी हूँ, लतीफ़ भी हूँ। तो फिर मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं काम का अपने जिगर का फूल लगाऊँ। तो इसलिए कोई आए जाए, उठे बैठे सोए जागे भागे, आपने मेरी आंखों में आंखें डाल के रखी। और ये पक्की बात है ना, आपके लिए पीछे से कोई मिठाई लेकर आएगा, ना जर्दा लेकर आएगा, ना शोरमा लेकर आएगा, जो भी आएगा बैठने आएगा। ये बड़ी बुरी बात होती है, मुकर्रिर बात कर रहा है, एक बंदा आया उधर देखने लग जाएंगे कौन है। ऐसे नहीं करना, ज़ौक़ से सुनना है तो मैं तुम्हें ज़ौक़ से आज से मेरे दोस्तों, एक रात का सन्नाटा था, रात की तारीकी थी, रात की जुल्मत थी, रात का अंधेरा था, रात की तन्हाई थी, रात की यकताई थी, रात की रानाई थी। और तैयबा कायनात, ताहिरा कायनात, अतीका कायनात, अफीफा कायनात, हबीबा हबीब खुदा जनाब सैयदा आयशा सिद्दीक़ा, सब कह दो रज़ी अल्लाह अपने अल्लाह के पैगंबर के कदमों में बैठी है। पूरी तवज्जो रखना, मैं इब्तिदा के 5-10 मिनट सिर्फ मजमे के तेवर पढ़ता हूँ कि यहाँ तकरीर करनी है या टाइम पास करना है। मुझे दोनों तरीके आते हैं। तकरीर कराओगे तो तकरीर करूँगा, नहीं तो टाइम पास कर दूंगा। पुराना तकरीर हूँ, तजर्बेकार हूँ। तैयबा कायनात अल्लाह के पैगंबर के कदमों में बैठी है। अचानक आसमान पे नजर पड़ी तो तैयबा कायनात ने देखा आसमान पर सितारे जगमगा रहे हैं। तैयबा कायनात फुल बटा तैयबा कायनात की नजर आसमान पे पड़ी तो तैयबा कायनात ने देखा कि आसमान पर सितारे जगमगा रहे हैं, झिलमिला रहे हैं, तिलमिला रहे हैं, मुस्करा रहे हैं, चमक और दमक रहे हैं, चहक और महक रहे हैं। तो तैयबा कायनात ने अल्लाह के पैगंबर से पूछा, फिदा का भी गाऊंगी या रसूल अल्लाह, हुजूर मेरे माँ बाप कुर्बान, जरा मुझे ये तो बताएं
کہ یہ جو آسمان پر ستارے جگمگا رہے ہیں ان ستاروں کی تعداد کیا ہے؟ پوری توجہ رکھیں، ان ستاروں کی تعداد کیا ہے؟ جملے میں ایک جملہ گزاروں گا، سمجھنے والے فوراً پک کر لیں گے اور کیچ کر لیں گے۔ اللہ کے پیغمبر نے فوراً یہ نہیں کہا عائشہ میں عالم الغیب ہوں ابھی بتا، بلکہ فرمایا واللہ عالم انا لا ادری، عائشہ رب جانتا ہے کہ ان کی تعداد کیا ہے، میں نہیں جانتا، ہاں میرے ایک آئیڈیا ہے، میرے ایک گیس ہے، میرے ایک وجدانی کیفیت کا اظہار و تخیل و تصور و توہم ہے کہ یہ ستارے اتنے لاتعداد بے شمار ان گنت کہ اگر کوئی انسان انہیں گننا چاہے تو وہ گنتے گنتے تھک سکتا ہے، مر سکتا ہے، اکتا سکتا ہے، کیلکولیشن کا نظام فیل ہو سکتا ہے، ہند سے ختم ہو سکتے ہیں، لیکن کوئی ان ستاروں کو شمار نہیں کر سکتا۔ تو طیبہ کائنات نے فوراً جواب پہ سوال کر دیا اللہ کے پیغمبر اگر یہ ستارے لاتعداد بے شمار ان گنت، پھر مجھے بتائیں کہ آپ کی پوری امت میں، آپ کی پوری جماعت میں، آپ کی پوری آل میں، آپ کے پورے اصحاب میں، آپ کے سارے یاروں پیروکاروں حبداروں جانثاروں وفاداروں وفاشیاروں پیروکاروں میں کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ؟ اب پوری توجہ رکھنا، اللہ کے پیغمبر نے فوراً جواب دیا، برجستہ جواب دیا، پھر بدی جواب دیا، ادھر ادھر دیکھ کے نہیں، سوچ و بچار کر کے نہیں، سر کھجا کے نہیں، کیلکولیٹ کر کے نہیں، حساب و کتاب کر کے نہیں، اندازے لگا کے نہیں، بلکہ سوال ختم ہو رہا تھا، اللہ کے پیغمبر نے فوراً برجستہ پھر بدی جواب دیا، ہاں عائشہ میری امت میں، میرے یاروں میں، میرے پیروکاروں میں، میرے وفاداروں میں، میرے جانثاروں میں، میرے ان یاروں میں میرا یار عمر بن خطاب وہ مقدس انسان ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ۔ اب جب اللہ کے پیغمبر نے یہ جواب دیا عائشہ میرے یاروں میں عمر بن خطاب وہ مقدس انسان ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہے۔ اب توجہ رکھنا، طیبہ کائنات خاموش ہو گئی، مہر بلند ہو گئی، سکوت و سناٹا چھا گیا، خاموشی طاری ہو گئی۔ اللہ کے پیغمبر تو ویسے ہی چہرہ شناس تھے اور طیبہ کائنات کے چہرے کے خد و خال کو پڑھنا تو میرے پیغمبر کا کمال تھا۔ حضور نے جب چہرہ عائشہ کو دیکھا تو اللہ کے پیغمبر نے پوچھا عائشہ کیا بات ہے، میرے جواب کے بعد تیری جبین پہ اظہار اطمینان نظر نہیں آیا؟ عائشہ کیا بات ہے، میرے جواب کے بعد تیرے چہرے پر اظہار مسرت نظر نہیں آیا؟ عائشہ کیا بات ہے، میرے جواب کے بعد تیرے ہونٹوں پہ ہنسی کی کرن رقصہ نظر نہیں آئی، تو میرے جواب سے مطمئن نظر نہیں آ رہی؟ تو طیبہ کائنات نے کہا اللہ کے پیغمبر آج میری ایک بہت بڑی غلط فہمی دور ہو گئی۔ حضور نے پوچھا عائشہ وہ کون سی؟ تو طیبہ کائنات نے کہا اللہ کے پیغمبر میں تو آج تک یہ سمجھتی تھی کہ شاید آپ کی پوری امت میں، آپ کے پورے اصحاب میں، آپ کی پوری جماعت میں، آپ کے سارے یاروں میں، آپ کے پیروکاروں میں، آپ کے وفاداروں میں میرا باپ ابو بکر سب سے آگے ہوگا، عبادت میں اول، اطاعت میں اول، ریاست میں اول، تلاوت میں اول، گندگی میں اول، جستجو میں اول، حمد و ثنا میں اول، تمجید و تقدیس میں اول، تعمید و تسبیح میں اول، تعلیل و تطہیر میں اول۔ لیکن آپ نے میرے سوال کے جواب میں میرے باپ ابو بکر کا نام نہیں لیا بلکہ عمر کا نام لیا، تو میں آج سمجھ گئی کہ میرا باپ ابو بکر پیچھے رہ گیا، عمر میرے باپ سے آگے نکل گیا، تو پھر
तवज्जो मेरी तरफ। हुजूर मेरी आज गलत फहमी दूर हो। मैं तो आज तक समझती थी मेरा बाप सबसे आगे, मेरा बाप सबसे अव्वल। क्यों? ईमान लाने में अव्वल, जान देने में अव्वल, कंधों पे उठाने में अव्वल, झोली में सुलाने में अव्वल, माल लुटाने में अव्वल, बेटी कदमों में निछावर करने में अव्वल, हर जगह वो अव्वल। तो मैंने कहा नेकियों में भी वो अव्वल होगा। मुल्तान वालों मेरे जुमले जाहिर न करना, अपने दिल के कंप्यूटर में सेव करना। हुजूर मेरी गलत फहमी दूर हो गई। मैं तो आज तक अपने बाप अबू बकर को समझती थी कि वो सबसे आगे होगा। आपने उमर का नाम लिया तो मैं समझ गई मेरा बाप पीछे रह गया, उमर मेरे बाप से आगे निकल गया। तो अल्लाह के पैगंबर ने कहा आयशा 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 तूने ये पूछा है कि सितारों से ज्यादा नेकियां किसकी है? तूने ये तो नहीं पूछा कि सारों से ज्यादा नेकियां किसकी? आयशा बच्चे को बिठा दो प्लीज यार, बच्चों को बिठा दो। ये सुनना बहुत कम कर दिया। आयशा तूने ये पूछा है कि सितारों से ज्यादा नेकियां किसकी? तूने ये तो नहीं पूछा कि सारों से ज्यादा नेकियां किसकी? अगर तो मुझसे ये पूछती कि सारों से ज्यादा नेकियां किसकी है तो फिर ज़बाने मोहम्मद से सुन, कलामे मोहम्मद से सुन, फरमाने मोहम्मद से सुन, विजदाने मोहम्मद से सुन, ऐलाने मोहम्मद से सुन। उमर की सारी उम्र एक तरफ, तेरे बाप की एक रात का मुकाबला नहीं कर सकती। अगर तो मुझसे ये पूछती तो सारों से ज्यादा नेकियां किसकी है तो फिर इमाम मोहम्मद से सुन, उमर की सारी उम्र एक तरफ। तो मेरी यार क्या कर रहे हो, क्या छोटा बना रहे हो? ठीक चल रही है हमारे पास, ठीक है, मजीद गड़बड़ ना करो। ये जल्द से पहले कर लिया करो ना, मेन मुकर्रर के दौरान ये पूछ लीज अच्छी नहीं लगती, रिदम टूट जाता है बंदे का। पूरी तवज्जो रखना। हुजूर ने फरमाया आयशा तूने ये पूछा है कि सितारों से ज्यादा नेकियां किसकी? तूने ये नहीं पूछा कि सारों से ज्यादा नेकियां किसकी? अगर तो मुझसे ये पूछती तो फिर उमर की सारी उम्र एक तरफ, तेरे बाप की हिजरत वाली एक रात का आओ मुल्तान वालों, रमानिया मस्जिद वालों, गुलशन शुजात वालों, आओ तुम्हें उस रात के तारे दिखा। आओ तुम्हें उस रात की खुशबू सुनाओ। आओ तुम्हें उस रात की गलियां घुमाओ। आओ तुम्हें उस रात का मंजर दिखाओ। अब एक सवाल खास तौर पे उलमा और मैं पे बैठे अहले इल्म, इनकी झोली में डालने चला हूं, एंड पे उसका जवाब भी खुद दूंगा। आओ आओ मिल के, पूरी तवज्जो, आओ मिल के ढूंढते हैं, पूरी तवज्जो रखना, ढूंढते हैं, देखते हैं, डीप में जाते हैं, उमक और गहराई में जाते हैं, इस समंदर की तह में चलते हैं कि इस रात में ऐसा हुआ क्या कि ये एक रात उमर जैसे उमर की सारी उम्र को क्रॉस कर गई। मैं यहाँ रोक कर उलमा, खुतबा, शुअरा, उदबा, फुसहा, बुलगा, आले इल्म, आले बसीरत, आले बसारत, आले इश्क, आले उम्र, मैं उन्हें दावत फिक्र किया करता हूँ कि अल्लाह के पैगंबर के इस जुमले पर आपने कभी गौर किया? समंदर में गोता लगाया, डीप और उमक और गहराई तक गए कि अल्लाह के पैगंबर ने कितना बड़ा जुमला कह दिया। ये कोई मामूली जुमला है कि उमर की सारी उम्र एक तरफ? कौन उमर जिसको मांगने के लिए मेरा पैगंबर आधी आधी रात को हकीमे काबा में झोली फैलाकर आंखों से आंसू बहाता नजर आए? कौन उमर जो कलमा पढ़े तो साहब जश्न मनाते नजर आए? कौन उमर जो कलमा पढ़े तो हमारे फरिश्ते भी नारे लगाते नजर आए? कौन उमर जो कलमा पढ़े तो पैगंबर भी मुस्कुराते नजर आए? कौन उमर
जो जमीन पे बोले रब कुरान बनाता नजर आए। कौन उमर जो दरियाओं को चट लिखे दरिया की हया करके बहन दे नजर आए। कौन उमर जो आग को ऑर्डर करे आग भी वापस चली जाए। कौन उमर जो नबी को पर्दे का मशवरा दे अल्लाह कयामत तक शरीयत बना दे। कौन उमर जो मकाम इब्राहिम पे नफल का इरादा करे अल्लाह कयामत तक हज का हिस्सा बना दे। कौन उमर जो तैयबा कायनात की सफाई के लिए जो जुमले कहे अल्लाह सेम टू सेम उन्हीं जुमलों को सूरह नूर बना दे। कौन उमर जो जानवरों को ऑर्डर करे तो जंगल खाली कर दे। कौन उमर जो मिंबर पे बैठ के बोले अल्लाह उसकी आवाज को कई मील दूर तक पहुंचा दे। कौन उमर जिसके दौर में ज़ल्ज़ला आए, जिसके दौर में ज़ल्ज़ला आए मदीने में और उमर की हुकूमत, उमर अमीरुल मोमिनीन, उमर वक्त का वज़ीर आज़म, उमर वक्त का प्रेसिडेंट, उमर वक्त का खलीफतुल मुस्लिमीन और खड़ा है जमीन पे मदीने में और जमीन कांप रही है, ज़ल्ज़ला आ रहा है। तू और मैं होते डर के भागते, घर से निकलते, सहम जाते, लोगों को कहते, ऐलानात शुरू हो जाते, ज़ल्ज़ला हो रहा है अपने आप को बचा दो। मैं तुझे उमर के ईमान की असमत उमर न डरा न सहमा न भागा न छुपा। उमर ने यूं दुर्रा उठाया, अरब के लोग दुर्रा बांधते हैं यहाँ, कोड़ा कहते हैं उसको, हाँ वो दुर्रा कहते हैं। उमर ने यूं दुर्रा बांधा हुआ होता था, उमर ने दुर्रा खोला, जमीन पे दे मारा और जमीन को मार के कहा तेरे ऊपर अदल की हुकूमत कर रहा हूं, मेरे होते हुए तू मदीने में ज़ल्ज़ला बर्पा कर दी है। जाओ, आज भी तारीख में सोने के पानी से लिखा हुआ है कि उमर का दुर्रा मारना था, ज़ल्ज़ला वहीं पे रुक गया। सिर्फ रुका नहीं, मुल्तान वालों एक जुमला देने चला हूं, जिंदगी में पहली दफा सुनोगे, 1450 साल हो गए, वो दिन था आज का दिन है। रूए जमीन के हर खित्ते पे ज़ल्ज़ला आया, मदीने में फिर ज़ल्ज़ला नहीं। ये उमर का दुर्रा है। कौन उमर जिसके लिए पैगंबर कहे लौकाना बाकी नबी और लकाना उमर, मेरे बाद नबूवत का दरवाजा बंद है, अगर खुला होता तेरे सर पे नबूवत का ताज है। कौन उमर जिसके लिए पैगंबर कहे उमर जब किसी का बाप मरे तो बच्चे रोते हैं, बच्चे मरे तो बाप रोता है, जिस दिन तू मरेगा मेरा इस्लाम रोएगा। कौन उमर जिसके लिए पैगंबर ने कहा उमर, पूरी तवज्जो रखना है अपने ज़ौक़ का जुमला, एक ज़ौक़ अब्बासी के समंदर से हीरा दे देता। कौन उमर जिसके लिए पैगंबर ने कहा उमर जिस गली से तू गुजर जाए शैतान नहीं गुजर सकता। शैतान, सारे बोलो शैतान। आओ अब अपने ज़ौक़ के समंदर का हीरा देने चला हूँ। मैंने तसव्वुरात की दुनिया में जनाब उमर से मुखातब होकर कहा, हाँ अमीरुल मोमिनीन, हमें आपके चेहरे के रोब और दबदबे का अंदाजा नहीं है। अंदाजा नहीं क्यों? हमने देखा नहीं। पूरी तवज्जो रखना, एक जुमला जो शायद पहली दफा सुनोगे, चाहे कोई 100 साल का बुजुर्ग भी बैठा है। उमर हमने तेरे चेहरे का रोब, दबदबा, हैबत, जाहो जलाल देखा नहीं है। क्यों? हमने तुम्हें देखा नहीं है, लेकिन तेरे नाम का रोब बड़ा देखा। तेरे नाम का दबदबा, हैबत और जलाल इतना देखा कि आज भी कहीं पर बाबे उमर लिख दो, ना शैतान गुजरता है ना औलाद गुजरती है। हमने तेरे नाम में बड़ा रोग। अब अंदाजा खुद कर लेना, आंखें बंद करके तस्वुरात की दुनिया में, तो जिसके नाम में इतना रोग है कि न शैतान गुजरता है ना औलाद गुजरती है, तो उसके चेहरे में कितना रोग है। अल्लाह के नबी ने ऐसे तो नहीं कह दिया उमर जिस गली से तू गुजरे तेरे डर से शैतान ही नहीं गुजरता। तो मैंने कहा उमर हमने तेरा चेहरा तो देखा नहीं, लेकिन तेरे नाम का डर बड़ा देखा है, जहाँ लिख दे कोई शैतान नहीं गुजरता।
गुजरना भी पड़े तो कहा जाता है पहले इसका कपड़ा पहनो। आओ आगे चलो। ये मेरी तमीज थी आधे घंटे की। अब मैं तकरीर शुरू कर देता हूं। मेरी शुगर लो हो रही थी, मैंने मीठा पानी मंगाया। मैं छोड़ूंगा नहीं इनको। पूरी तवज्जो रखना। इस तमीज के बाद अब तकरीर शुरू कर देता हूं। क्या शेर? इधर आया तकरीर गेस्ट एंड ब्यूटीफुल टू एंड तो सर की ज्यादा रहा मेरे होते मेरे तो देखे काट ना सकता थे। ये बस आता है इसलिए कभी कभी के बंदा जान जाता है। मजा जान जाता है। वो तो जो रखना मौजूद शुरू करने चला। मेरा वो सवाल अपनी झोली में रखना, एंड पे जवाब दूंगा कि आओ मिल के ढूंढते हैं कि इस रात में ऐसा हुआ क्या कि ये एक रात उमर जैसे उमर की सारी उम्र को करा सकता। भाई ये सवाल दे में रखना, मेरी पूरी तकरीर इसका जवाब होगा, एंड पे मैं जवाब का एक जुमला कहूंगा। आओ मेरे को ढूंढते हैं। एक रात है, अल्लाह के पैगंबर अपने घर में व्यस्त रहते, आराम इत्मीनान में, सुकून और राहत में, मेहरबानी और शेर चली हक का वली जनाब अली अबू तुराब असदुल्लाह अल-गालिब अबुल हसन वल हुसैन शौहर ज़हरा गौहर काबा जन्नत के शहजादों का बाप फातिह खैबर कातिल मरहब अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन कातिलुल मुर्तद्दीन खलीफा चारों जनाब सैयदना अली शेर खुदा भी साथ सोए। जो जिंदा बैठा वो कहते मैं फिर कहा करता हूँ जिसके मुंह में हो ज़बान वो कहे सुबह। पूरी तवज्जो। सोए हुए आधी रात का वक्त, अली शेर खुदा कहते हैं मेरे कानों में शोर है, मेरे कानों में शोर है कि बाहर कोई लोग हैं और आपस में कोई बातें करते हैं। तो अली शेर खुदा कहते हैं मैं हैरान शुज़ कि आधी रात को हुजूर की गली में ये शोर कैसा? अली फरमाते हैं मैंने दीवार के सुराग से झांक के जब देखा, चांदनी रात थी, तो मैंने बाहर क्या देखा, कुछ 100 के करीब बंदे खड़े हैं, हाथों में नंगी तलवारें हैं और एक दूसरे से कह रहे हैं कि नऊज़ बिल्लाह आज की रात मोहम्मद की आखिरी रात है, आज हम मोहम्मद को शहीद करके जाएंगे। पूरी तवज्जो रखना। हज़रत अली जब ये जुमले सुने फौरन भागे हुजूर की तरफ और हुजूर को जाके जगाया, जाके मेरे साथ अगर ये मेरे 5-10 जो यार बैठे ना उलमा यही बोलते रहे मुझे काफी। लेकिन मौलवी की तकलीफ पे बोलता है ताकि दिल फाप ना मिले। पूरी तवज्जो रखना, पूरी तवज्जो रखना। पेटी गिराऊंगा। अब दोनों सोए हैं, हुजूर और जनाब अली। अली भागे और जाके हुजूर को जगाया। हुजूर जाग पड़े। पूछा अली खैरियत क्या हुआ? आधी रात को मुझे क्यों जगाया? अली शेर खुदा ने कहा हुजूर खैरियत नहीं है। हुजूर ने फिर पूछा अली बता तो सही हुआ क्या है? अली शेर खुदा ने कहा पूरी तवज्जो मुल्तान वालों, अली शेर खुदा ने कहा हुजूर बाहर काफिर आपको मारने आए हैं, तलवारें लेके खड़े हैं और 100 से ज्यादा है। हुजूर मुस्कुरा पड़े और हुजूर ने कहा अली घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा, घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा। अली शेर खुदा ने पूछा हुजूर वो कैसे? हम 2 वो 100, हम निहत्ते वो मुसल्ला, हम अकेले वो जत्था, कैसे कुछ नहीं होगा? हुजूर ने फरमाया अली घबराओ नहीं,
मारने वाले अभी आए हैं, बचाने वाला पहले से। मारने वाले अभी आए, बचाने वाला पहले से। अब आओ, इतने तक तो तुमने पहले सुना होगा, अब अपने ज़ौक़ पे घी रख। अली ने पूछा हुजूर क्या करेंगे, कैसे बचेंगे? हुजूर ने फरमाया अली देख सही मैं आज इनके साथ करता क्या। पूरी तवज्जो मेरी तरफ रखना। अली देख मैं इनके साथ करता क्या। हुजूर क्या करेंगे? अली शेर खुदा से ने पूछा हुजूर क्या करेंगे? हुजूर ने फरमाया अभी मट्टी उठाऊंगा, पूरी तवज्जो रखना, मट्टी उठाऊंगा, शातुल वजू पढ़ूंगा, इनके चेहरों पे डालूंगा, ऐसी डालूंगा, ऐसी डालूंगा, ऐसी डालूंगा कि डालूंगा आज रहेगी कयामत तक। रहेगी। बहुत पुरानी बात है, गालिबन 97 था। मैं एशिया के दौरे पे था, हांगकांग, थाईलैंड, सिंगापुर, चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया, इन मुल्कों के दौरे पे 1997 में। तो मैंने हांगकांग में ये जुमला कहा। तो आपको पता है मैंने क्यों कहा बेटी भाई? हमारे जो मौलवी होते हैं कुछ पढ़े हुए, कुछ कड़े हुए, कुछ सड़े हुए। मौलवी को बर्दाश्त करते बड़ी बात होती है। जैसे डॉक्टर को, जनरल स्टोर वाले को पता तो है ना, एक फितरत में है। तो कुछ मौलवी पड़े हुए होते हैं वो भी काबिल बर्दाश्त है, कुछ खड़े हुए होते हैं वो भी काबिल बर्दाश्त है, जो सड़े हुए होते हैं वो तो बर्दाश्त। तो कुछ सड़ा हुआ था उसने जनाब तकरीर के बाद, मैंने कहा शुक्र है तकरीर में नहीं खड़ा हो गया। तकरीर के बाद मुझे कहते हैं वासी साहब कहाँ से इस्तेमाल किया आपने? कि डालूंगा आज रहेगी कयामत तक। तो जो रखना वाले उलमा से कहूँ, मुझे कहता कहाँ से इस्तेमाल किया? तर्ज इस्तेदलाल आपका अजीब है, किसी आयत में किसी हदीस में ये लफ्ज नहीं। आपने कहा डालूंगा आज रहेगी कयामत तक। और मैंने कहा काश अल्लाह तुझे इदराक देता, गहराई देता, तफक्कुर फी दीन देता। मैं युरिदिल्लाहु खैरन युफक्किहु फी दीन। अल्लाह तुझे तफक्कुर दीन देता, तुझे क़ियास देता, तुझे इज्तिहाद देता, तुझे तर्ज इस्तिंबात देता, तुझे तर्ज इस्तिदलाल देता। कहते हैं कहाँ से इस्तिदलाल किया? मैंने कहा मैंने इस्तिदलाल किया है कि मैंने अल्लाह के पैगंबर की हदीस पढ़ी है, क़यामत जब आएगी ना, दिन जुमा का होगा, तारीख 10 मुहर्रम की होगी, मट्टी ढूंढ लेना किनके चेहरों पे मिलेगी। मैंने इसलिए कहा कि डालूंगा रहेगी कयामत तक। हुजूर ने मट्टी उठाई, यूं डाली दीवार के अंदर से बाहर फेंकी। अब आप खुद सोचो, मेरे नबी का मुआजिज़ा देखो। एक मुट्ठी उठाई और बाहर लश्कर खड़ा है, और वो लश्कर इकट्ठे एक जगह नहीं खड़ा कि वो मुट्ठी गई और सबको अंधा कर दिया, बिखरा हुआ है, पूरी गली भरी हुई है। लेकिन हुजूर ने यूं डाला, अल्लाह ने ऐसी उसमें आंधी चलाई कि वो सबकी आंखों में गई और सबको अंधा किया, उस दिन से लेके आज तक। ना उस दिन हक नजर आया, ना आज हक नजर आता है। ना उस दिन हक समझ आया, ना आज हक समझ आता है। अब जब मट्टी डाली, हुजूर अली शेर खुदा से कहते हैं, इन जुमलों को भी जरा याद रखना, आगे काम आएंगे। हुजूर ने अली शेर खुदा को बुलाया और अली से कहा जल्दी जल्दी अली मैं अभी अकेला जाऊंगा, पूरी तवज्जो रखना, यहाँ से वहाँ जाऊंगा, वहाँ से उसको लेकर हम वहाँ जाएंगे, फिर वहाँ से हम मदीने जाएंगे, और तू ये मक्के वालों की अमानतें पड़ी हैं, ये सुबह उठकर उनकी अमानतें उनके सुपुर्द करना, ताकि वो ये न कहे कि मोहम्मद तो अमीन था, हमारी अमानतें भी लेके चला गया। तू उनकी अमानतें तकसीम करके तू भी हमारे पीछे पीछे आना, जब तक तू नहीं आएगा मदीने में मैं कदम नहीं रखूंगा। अब तो वजह रखना, अब तो वजह रखना। हुजूर ने फरमाया अली ये मेरा बिस्तर है, ये मेरी चारपाई है, ये मेरी कमली है, चादर है, कंबल है, इसे ओढ़ के सोना, इसे ओढ़ के अली शेर